السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ہماری ویڈیو کو لائک کر کے شیئر اللہ ضرور اکبر۔ کیجیے۔ ایک صحابی تھے، نوجوان صحابی، بڑے بہادر تھے، مگر حبشی النسل تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، بڑے بڑے دانت تھے، پکا کلر تھا جسے لوگ کالا رنگ کہتے ہیں۔ میں صحابی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہو کہ پکا رنگ تھا، کھٹ پکا رنگ، بالکل جیسے حبشیوں کا رنگ ہوتا ہے وہ حبشی تھے، رنگ پکا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، بڑے بڑے دانت تھے، اور حضور علیہ السلام کے وہ ایسے بھولے بھالے سیدھی طبیعت کے صحابی تھے۔ حضور علیہ السلام خود بھی ان سے مزاح فرماتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ بارگاہ رسالت میں آئے، آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او فلاں تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ مدینے کے لوگ خوبصورت ہیں، مالدار بھی ہیں، مدنی لوگ غیر مدنی کو بیٹیاں نہیں دیتے، حبشی کو کیا بیٹی دیں گے؟ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضور نے پھر فرمایا، تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ دوسری بار کہا، ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جب آنکھ میں آنسو آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت تھی، حضور کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کا دل بڑا نرم تھا، حضور نے کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھے۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اس صحابی کی آنکھوں میں، نوجوان صحابی حبشی تھے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضور مدینے کے لوگ کون بیٹی دے گا مجھے؟ کریم آقا کا دریائے کرم جوش میں آیا، اور میرے رسول نے، سچے نبی نے ارشاد فرمایا، جاؤ جاؤ اور فلاں جو بڑا خوبصورت قبیلہ ہے، بڑا مالدار قبیلہ ہے، اس گھرانے میں بڑی خوبصورت بیٹی ہے، جا کر ان کے دروازے پہ دستک دو، اور دستک دینے کے بعد ان سے کہنا کہ میں نے سلام کہا ہے، میرا سلام پہنچاؤ، اور ان سے کہنا کہ اپنی بیٹی کا نکاح کا رشتہ وہ تمہارے ساتھ طے کر دے۔ اللہ اکبر، خوش نصیبی یہ تھی کہ اگر وہ ہاں کر دے تو اللہ کے رسول نکاح میں خود تشریف لائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں خود شرکت ہوگی۔ وہ گئے اور دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دینے کے بعد دروازہ کھلا۔ اس صحابی نے، جو مالدار بھی تھے، خوبصورت قبیلے سے تعلق تھا، خوبصورت بیٹی رکھتے تھے، انہوں نے پوچھا، اس وقت تم؟ تو پوچھا، اس وقت تم؟ تو عرض کیا کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے آیا ہوں، حضور نے آپ کو سلام کہا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے، خوش نصیبی میری، اور کیا بات ہے؟ کہا، اللہ کے رسول نے سلام کہا، سلام کا اور بھی کوئی بات ہے؟ ہاں، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو، حضور کا حکم ہے۔ اب انہوں نے دیکھا، سر سے لے کے پیر تک کوئی انسان ولی ہو، صحابی ہو، عالم ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، لیکن دل میں اولاد کے لیے جذبات کم و بیش ایک ہی ہوتے ہیں۔ باپ باپ ہوتا ہے، ڈگری کوئی ہو، باپ باپ ہوتا ہے، انسان کی صلاحیت کوئی ہو، باپ باپ ہوتا ہے۔ ایک باپ کے دل میں اولاد کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ باپ ہی کے دل میں ہو سکتے ہیں۔ اوپر سے لے کے نیچے تک اس جوان کو دیکھا، اور اس کے بعد خیال آیا، اگر ہاں کر دوں، اتنی خوبصورت بیٹی کو حبشی کے بندن میں باندھ دوں، جس کا خود کا مکان بھی نہیں، کوئی کاروبار بھی نہیں، کوئی کھاتا پیتا گھر نہیں، اللہ اکبر، تو میں اپنی بیٹی کو کیسے مناؤں گا؟ ایک اپنی بیٹی کے مستقبل کو ایک حبشی کے بندن سے باندھ دوں۔ اور دوسری طرف خیال آیا، اگر نہ کہوں تو حضور کے حکم کا انکار ہوگا، ایمان اس طرف خطرے میں ہے، ایک طرف بیٹی کا مستقبل ہے، ایک طرف اپنی آخرت ہے، جواب کیا دوں؟ فوری طور پہ کہا، رکو، ٹھہرو، میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں۔ اور جیسی بیوی کے پاس جا کر کے بات رکھے، اس سے پہلے کہ ان کی بیوی کچھ کہتی، خوبصورت حسین و جمیل بیٹی جس کی واقعی تربیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے سائے میں کی گئی تھی، ماں باپ کچھ اور فیصلہ کرتے، اس جب وہ خوبصورت سی لڑکی نے جواب دیا، امی اور بابا نہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آنے والے حبشی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بھیجنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا جائے۔ تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ اللہ اکبر، کسی کا رشتہ ماں باپ طے کرتے، دادی دادا طے کرتے، نانا نانی طے کرتے، قبیلے کے لوگ طے کرتے، تمہاری ویڈیو بیٹی اگر کا اچھی لگ رشتہ رہی تو لائک محمد ضرور کریں۔ رسول اللہ نے طے کیا، آمنہ کے لال نے طے کیا۔
दिया, हर कड़वा घूंट पी लूंगी, हर गुर्बत को बर्दाश्त कर लूंगी, हर तकलीफ को बर्दाश्त कर लूंगी, मगर हुजूर को नाराज नहीं करूंगी, अल्लाह के हबीब को नाराज नहीं करूंगी। बाबा, आने वाले हबशी को देखने की जरूरत नहीं है, भेजने वाले मुस्तफा जाने रहमत को देखा जाए, जल्दी से हाँ कर दे बाबा, मैं यकीन दिलाती हूं हर दुख दर्द सह लिया जाएगा। और उसके बाद फिर हाँ कर दिया गया। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात सुनी, इतना खुश हुए मेरे आका। आका ने उस बच्ची को दुआ दी, आका ने दुआ दी, अल्लाह तुझे खुश रखे। हुजूर ने दुआ भी खुश रखे। खुदा की कसम, मेरे नबी की दुआ, जाने दुआ की दुआ क्या है, अगर वो किसी को प्यार से देख ले तो उसकी नस्लों का मुकद्दर संवर जाए। हुजूर किसी के लिए दुआ करे तो हुजूर की दुआ क्या है? मेरे इमाम कहते हैं, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआएं मोहम्मद। फिर क्या हुआ? हुजूर ने दुआ दी और दुआ देने के बाद हबशी से निकाह हो गया। चंद ही दिन में अल्लाह ने उस हबशी को बड़ा कारोबार भी दे दिया, अच्छा घर भी दे दिया। मदीने की औरतें आपस में बातें करती थी कि सबसे ज्यादा खर्चीला अगर मदीने में कोई घर है, मदीने मुनव्वरा में, तो वो उसी लड़की का घर है जो मदनी होकर हुजूर की खुशी के लिए हबशी के साथ शादी कर चुकी है। अल्लाह के रसूल की दुआ ने उसकी जिंदगी को जन्नत निशान बना दिया, खुशियों से भरपूर कर दिया। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, क्या समझी आप? हुजूर की दुआ के लिए, हुजूर की दुआ लेने के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लेने के लिए, हुजूर को खुश करने के लिए, सिर्फ ईमान और इस्लाम पर ख्याल रखो कि अपना कोई मियार नहीं है, इस्लाम हमारा मियार है। जहां ईमान और इस्लाम हो, इसलिए कि इससे बड़ी डिग्री कोई नहीं है, ये सबसे बड़ी डिग्री है। सारी कागज की डिग्रियां जो दुनिया की है, मैं उसकी अजमत का और उसकी अहमियत का इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं उसे हिकारत की नजर से देखता हूं, लेकिन याद रखना, सारी कागज की डिग्रियां कब्र के बाहर रहेगी, ईमान की डिग्री कब्र के अंदर जाएगी। और इस डिग्री की शान ये है, जब ईमान की डिग्री लेकर के जाओगी तो फरिश्ते भी ताजीम करेंगे। इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, इसलिए अपना मियार ये होना चाहिए। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक औरत देखी जहन्नम के अंदर, अल्लाह अकबर, जिसके दोनों हाथ पांव को उसके सर से बांध दिया गया है, हाथ पांव को उसके सर से बांध दिया गया है और वो जहन्नम में लटकी हुई है। सैयदा ने पूछा, बाबा ऐसा क्यों? तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब वो जनाबत से, हैज़ और निफास से पाक होती थी तो वो गुस्ल नहीं करती थी। अब मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता, बहनें बेटियां माएँ सब है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब किबला हुजूर मुहक्किक के मसाइल जदीदा से आपने मसाइल पूछे हैं, सिर्फ हया के पर्दे में इतना कहना चाहता हूँ कि 7 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। जैसे ही नापाकी के अय्याम खत्म हो जाए, औरतों को चाहिए वो गुस्ल करे और गुस्ल करके नमाज शुरू कर दे। बच्चे की विलादत के बाद 40 दिन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, जैसे ही नापाकी के दिन खत्म हो जाए गुस्ल करो और नमाज शुरू कर दो। ये हमारे इलाके में नासिक से लेके बुरहानपुर तक ये जितना पट्टा है और फिर उधर दक्कन का पट्टा, इस तरफ ये देखा जा रहा है, सुना जाता है कि औरतें पाक होने के बाद भी, नापाकी के अय्याम खत्म होने के बाद भी, बच्चे की विलादत के बाद चिल्ले का इंतजार करती रहती है, 40 दिन का इंतजार करती रहती है, नमाज शुरू नहीं करती, रोजे छोड़ती रहती है। ऐसी औरतों के लिए वईद है ये कि उनके बालों से उनको बांध कर जहन्नम में लटकाया जाएगा। इसलिए खातून जन्नत की कनीजों, ये मसला मैं बहुत ओपन बयान नहीं कर सकता, आप निहाई तकद्दुस मांग है हमारे लिए, लेकिन हक बयान करने में अल्लाह रसूल ने हया से मना फरमाया है, इसलिए मैंने जितना हो सका हया के पर्दे में अर्ज कर दिया। यहाँ आलिमा मौजूद है, मुअल्लिमात मौजूद है, तफसीलात आप उनसे मालूम कर लो, मगर याद रखो जब नापाकी के दिन खत्म हो जाए, गुस्ल करने में ताखीर करने पर हुजूर ने वईद बयान फरमाई है कि बालों से बांध कर हाथ और पैर को जहन्नम में लटकाया जाएगा। और फिर उसी के साथ साथ जब जनाबत की
गुस्ल की हाजत हो तो भी बहुत देर तक 11 बजे तक 12 बजे तक आधे आधे दिन तक उसी हालत में न रहो, बल्कि जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लिया जाए, क्योंकि जहां जनाबत वाले मर्द और औरतें रहते हैं वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, इसका ख्याल करें। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पांचवी औरत जहन्नम में देखी गई। आका इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पांचवी औरत जो जहन्नम में देखी गई उसका चेहरा खिंजीर की तरह था और उसका पूरा जिस्म गधे की तरह था, चेहरा सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह, और वो जहन्नम के अंदर लटकी हुई है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, जरा गौर तो करो मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल जहन्नम का मुशाहिदा करके सैयदाए कायनात और मौला अली के सामने बयान फरमा रहे हैं। और बहुत कम रिवायतें ऐसी जिसको सैयदा ने रिवायत किया है, जो रिवायत में पढ़ा उसको सैयदाए कायनात ने भी रिवायत किया, मौला अली ने भी रिवायत किया। थोड़ा तसव्वुर करो मेरी बहनों, आका फरमा रहे एक औरत जहन्नम में देखी गई जिसका मुंह सूअर की तरह था, जिस्म गधे की तरह था। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम से सैयदा ने पूछा, बाबा जान आखिर उसका ये हाल क्यों था, ये हाल होने की वजह क्या थी? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो चीजों की वजह से, जिसका मुंह सूअर की तरह, जिस्म गधे की तरह था, वो औरत में दो गुनाह थे, वो दो गुनाह करती थी। नंबर एक झूठ बोलती थी, नंबर दो चुगली करती थी। एक तो झूठ बोलना, नंबर दो चुगली करना। आज तो औरतें झूठ बोलने को गुनाह ही नहीं समझती, ऐसा लगता है जैसे झूठ पर औरतों ने डबल पीएचडी कर ली है। ये हालात है औरतों का, खवातीन का। हालांकि मर्द भी झूठ बोलते हैं, झूठ तो बल्कि आम ही हो गया है। अल्लाह अकबर, सोचो ये दुनिया में हमेशा नहीं रहना। अल्लाह की बंदियों, सूअर जैसा मुंह होगा झूठ की वजह से, गधे जैसा जिस्म होगा। ये मजहब इस्लाम की तालीम है, अल्लाह के रसूल। झूठ ना बोलो, झूठ से कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह अकबर, यहां तक फरमाया कि मोमिन झूठ नहीं बोलता, ये तो मुनाफिक की निशानी है। झूठ ना बोलो, अपने बच्चों को भी झूठ से बचाओ। और एक बात ये भी याद रखना, 95% लोग झूठ इसलिए बोलते हैं बंदों की नाराजगी से बचने के लिए। मैं कहता हूं 1000 नाराजगियां मोल ले लो, अल्लाह को नाराज मत करो, अल्लाह को राजी रखो। और दूसरी चीज चुगली, चुगली भी बड़ी खतर। चुगली का मतलब क्या? चुगली किसे कहते हैं? चुगली का मतलब इधर की बात उधर लगाना। आज से 50 साल पहले तक के लोग कहते थे औरतें चुगलखोरी करती है, लेकिन अब तो मर्द भी चुगलखोर हो गए, इल्ला माशाल्लाह। इधर की बात उधर लगाना, उधर की बात इधर लगाना, ये चुगली है, चुगली। अगर चुगली से आदमी बच जाए, चुगली से इंसान बच जाए, तो दुनिया के 90% झगड़े खत्म हो जाए। घर के झगड़े, मोहल्ले के झगड़े, सारे झगड़े खत्म हो जाए। ये झगड़े चुगली की वजह से, इधर की बात उधर, सास की बात जिठानी तक, जिठानी की बात देवरानी तक, देवरानी की बात फुला तक, ननन तक, ये सब चीजें होती है और ये झगड़े इसमें होते हैं। फिर ये चुगलखोरियां कभी कभी तलाक तक की नौबत ले जाते हैं, इसलिए चुगली से बचो। एक बात है इमाम गजाली ने लिखी है, मैं अर्ज कर दूं, सुन ले। अल्लाह अकबर, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम को मार पीट कर कुएं में डाल दिए और उनका कुर्ता उतार लिया, बकरी के खून में बहाकर, बकरी के खून में भिगा करके रोते पीटते आए और अपने बाबा से कहा, बाबा बाबा यूसुफ को भेड़िया खा गया। और सबूत के तौर पे एक भेड़िया भी पकड़ लाए। इमाम गजाली लिख रहे हैं अपनी तफसीर में कि सबूत के तौर पे कितने लोग जो है वो कैसी कैसी साजिशें करते हैं। बकरी के खून में कुर्ता डुबो लिया और भेड़िया भी पकड़ लिया, सबूत के तौर पे कि कितना पक्का सबूत है। याकूब तो अल्लाह के नबी थे अलैहिस्सलाम। तो बहरहाल जब वो कुर्ता पेश किया तो कुर्ता आपने देखा, तो देखो जब इंसान गलती करता है तो कोई ना कोई पॉइंट छोड़ ही देता है। तो कुर्ता देखा तो याकूब अलैहिस्सलाम हंसने लगे रोते रोते, कहा कितना होशियार भेड़िया था कि पूरा यूसुफ खा गया और कुर्ता जैसा कि वैसा ही। भाई जब जानवर किसी इंसान को खाएगा तो पहले कुर्ता फाड़ेगा ना, तो कुर्ता तो जैसा कि वैसा ही है और पूरा इंसान खा गया। कैसा होशियार भेड़िया था। तो कहने लगे बाबा यही भेड़िया था, ये खड़ा, इसको हम पकड़ के लाए। तो हज़रत याकूब ने रोते हुए कहा, ओ भेड़िए, मेरे यूसुफ को, खूबसूरत यूसुफ को खाना तुझे कैसे गवारा हो गया, तूने कैसे खा लिया? तो चूंकि नबी थे ना याकूब अलैहिस्सलाम,
तो भेड़िए ने नबी से बात की और भेड़िए ने कहा अल्लाह के नबी, आपका यूसुफ सिद्दीक भी नबी है और अल्लाह ने जानवरों पे हराम किया है नबी को खाना, मैं नबी को कैसे खा सकता हूँ? मैंने नहीं खाया, इन्होंने मेरे साथ चीटिंग की है, ये मुझे जबरदस्ती पकड़ के लाए, मैं तो अपने दूध शरीक भाई को ढूंढने निकला हूँ और ये मुझे पकड़ करके लाए। तो तब हजरत याकूब ने कहा बताओ मेरा यूसुफ कहाँ है? कहा मैं जानता हूँ मगर बताऊंगा नहीं। कहा क्यों नहीं बताएगा? कहा बताऊंगा तो चुगली हो जाएगी और मैं चुगली नहीं करना चाहता, चुगली हो जाएगी और मैं चुगली नहीं करना चाहता। इमाम गजाली फरमाते हैं वो भेड़िया होकर चुगली से बचा, अल्लाह को उसकी यादा इतनी पसंद आई कि कयामत के दिन वो भेड़िया जन्नत में दाखिल किया जाए। मेरी बहनों सोचो, अगर भेड़िया चुगली से बच जाए तो इमाम गजाली लिख रहे हैं कि वो भेड़िया जन्नत में जाएगा। सोचो तो सही, अंदाजा तो फरमाए, जैसे असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जन्नत में जाएगी, इसी तरह से वो भेड़िया भी जब वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह अकबर। तो मेरी बहनों चुगली से बचो। और आखिरी बात और अपनी गुफ्तगू मुकम्मल, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छठी औरत को देखा गया, छठी औरत उसका हाल ये था कि वो कुत्ते की शक्ल में थी, छठी औरत कुत्ते की शक्ल में थी और उसके मुंह में आग दाखिल की जा रही थी। छठी औरत जहन्नम में कुत्ते की शक्ल में थी और उसके मुंह में आग डाली जा रही थी और वो पाखाने के मकाम से आग निकल रही थी। अल्लाह अकबर, ये उसके साथ हो रहा था और जहन्नम की आग के चाबुक से उसकी पिटाई की जा रही थी, ये उसका हाल था। तो सैयदा ने अर्ज की बाबा जान, वो औरत जो कुत्ते की शक्ल में उसका मुंह कर दिया और मुंह में आग डालकर पाखाने के मकान से आग निकल रही थी और जब वो जहन्नम की आग के गूजे से चाबुक से उसको मारा जा रहा था, उसका क्या कसूर था? तो आका ने फरमाया वो औरत देकर एहसान जताने वाली थी, यानी किसी पे एहसान करके एहसान जताना। जैसे ऐसे होता है ना, कोई गरीबी में होता है फिर आपके यहाँ बर्तन झाड़ू करने आती है, या कोई गरीब में होती है, नंदे गरीब होती है, बहनें गरीब होती है, भाई गरीब होते हैं, रिश्तेदार गरीब होते हैं, आपकी पोजीशन अच्छी है तो आप उनकी मदद करते हैं। फिर कभी आप उनको किसी काम के लिए कहते हैं, वो नहीं करते तो कहते भूल गए अपने पिछले दिन, हम ही तो तुम्हारा बोझ उठाते थे, हम ही तो तुम्हारी मदद करते थे। या फिर गुर्बत के दिन उनके खत्म हो जाते, वो भी मालदार हो जाते, तो लोगों को बोलते फिरते अरे जब इसके दिन अच्छे नहीं थे, कोई मुंह नहीं लगाता था तो हम पालते थे, हम खिलाते थे, बच्चों की फीस हम भरते थे, हम ये करते थे वो करते थे। कहा फरमाया जो देकर एहसान जताए। एक और हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन पर जन्नत की खुशबू भी हराम है जो देकर एहसान जताते, एहसान करके एहसान जताते, एहसान करके एहसान मत जताओ, मुंह कुत्ते का होगा, मुंह में आग डाली जाएगी और आग की लगाम, अल्लाहु अकबर, आग के चाबुक से जिस्म को मारा जाएगा। इसलिए किसी पे एहसान करो, अल्लाह के लिए करो, भूल जाओ, एहसान ना जताओ। किसी की भी मदद करो अल्लाह के लिए, एहसान जताना छोड़ दो। तो देखते औरतें तो नमक देती है तो भी एहसान जताती, औरतें चप्पलें देती तो भी एहसान जताती। याद रखना, एहसान करके एहसान ना जताओ, और अगर जताने की आदत है तो एहसान ही ना करो। फिर अरे ऐसी बात नहीं करता आपसे, लेकिन इतना कहता हूं एहसान जताने से तौबा करो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह आपको मुझे सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान Thank you for watching my video. Please subscribe my channel.